بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 3 شعبان بدھ کے دن صرف 3 بار ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ وظائف پڑھ لو۔ دولت، عزت، شہرت، ذاتی مکان، قرضے سے نجات۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہر ناممکن حاجات ممکن میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج 3 شعبان بدھ کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان، دفتر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھ لو میرے بھائیوں۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی دولت کا طوفان آ جائے گا۔ عزت، دولت، شہرت جو چاہے مانگ لو۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج رب کریم سے جس حاجت کے لیے ضد کر کے بیٹھو گے مل جائے گا۔ صرف کرنا کیا ہے کہ یہ وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، بچوں کی اسکولوں کی فیسوں کی وجہ سے لوگ غربت، تنگ دستی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک کی حالات نے گھر میں بے برکتی پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ جن کی تنخواہیں 50-60 ہزار سے بھی اوپر ہیں، مہینہ شروع ہوتے ہی اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے گھر میں پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ بے برکتی کا عالم ہے، مشکلات، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، گھر میں غربت، تنگ دستی کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے۔ گھر میں آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، آپ 3 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورے سال کے نصیب کو لکھ دیا جاتا ہے۔ کس کو کیا ملے گا، کب ملے گا، کتنا ملے گا، ہر شے اس مہینے میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ اپنی من پسند نوکری چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، اللہ کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کملی والے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے میرے بھائیوں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ مشکلات، پریشانیاں پرانے وقتوں سے آ رہی ہیں۔ یہ غربت، یہ تنگ دستیوں کا ماحول پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام پہ کوئی مشکل وقت آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے معمول سے بنتے، تو وہ کبھی بھی رب کے خلاف نہ جاتے، وہ کبھی بھی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑتے، وہ کبھی بھی نبی کریم کی سنتوں کے خلاف نہ جاتے، وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے، بلکہ وہ یقین کامل کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوتے، دعائیں کرتے، ذکر و اذکار کرتے، بڑے بڑے اعمال کرتے اور رب کو منا لیتے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، جعلی پیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے ہدیے دیتے ہیں، تو رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے میرے بھائیوں کہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مانگ رہا ہے۔ اور جب رب کی ناراضگی ہوتی ہے نا میرے دوستو، تو پھر غربت، تنگ دستی، مشکلات اور بہت سی پریشانیاں آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ پھر چلتے کاروبار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر گھر سے سکون نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جتنا مرضی وظائف کر لیں، جتنی مرضی تسبیحات اور اعمال پڑھ لیں، پھر نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حاجات پورے ہونے کا نام لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بدبخت ہے، بدقسمت ہے، اگر کوئی مایوس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو ایسے تمام بندوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج مانگ لو رب کریم سے، کیونکہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی رات ہے، جس میں ہر بندے کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ کبیرہ صغیرہ گناہوں کی پکڑ ہوگی تو غربت، تنگ دستی جیسی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، شعبان ہمارے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے نکل جائے گا۔ رجب رب کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے،
तो आज मेरे भाइयों 3 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लीजिएगा। मैं रब करीम से मांगने का, रब को मनाने का, रब को राजी करने का, गुनाहों को बख्शवाने का एक ऐसा अमल लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। अगर कोई फकीर भी पढ़े ना तो बादशाही अता होगी। अगर कोई कहता है कि हमारे घर के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते तो 3 शबान बुध के दिन का ये वजीफा पढ़िए। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 3 शबान का दिन आ जाए तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आपने सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ना है। तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज 3 शबान बुध के दिन ये वजीफा एक बार पढ़ के देखे। ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। दोस्तों, भाइयों बहनों, शबान की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में रहमतें, बरकतें 24 घंटे बारिश की तरह बरस रही हैं। जो बंदा इस महीने की रातों में, इस महीने के दिनों में क़याम करता है, जिक्र अज़कार करता है, रब के सामने हाथ फैलाता है, वो फिर पूरा साल रब की रहमतों से माला माल हो जाता है। पूरा साल कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। और जो शबान के महीने को लापरवाही में गुजारता है, जो शबान की कदर नहीं करता, इन खास कबूलियत की घड़ियों की कदर नहीं करता, फिर वो सारा साल दर दर की ठोकरें खाता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वक्त है मांगने की घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज अगर आप बेरोजगार हैं, आप रोजगार के लिए पढ़ेंगे तो बेहतरीन रिज़्क़ हलाल मिलेगा। आप बेऔलाद हैं, बेऔलादी के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, इंशाल्लाह आप बेटा चाहते हैं तो बेटा भी मिलेगा। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं। कर्ज एक ऐसी दलदल है मेरे भाइयों जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। सिर्फ 3 बार पढ़ने से वो लोग जो आपको देख कर रास्ता बदल लेते हैं, कहीं आप पैसे ना मांग लें, आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करते, आज 3 शबान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने से वो लोग आपकी कामयाबी का तमाशा देखेंगे और पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये ऐसा क्या करते हो कि रब करीम ने तुझे रातों रात माला माल बना दिया। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तलाक की नौबत आन पहुंची है। आप 3 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ के देखिएगा। और अगर कोई नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है, नाफरमान शोहर की वजह से परेशान है, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें, नजर बद और हसद का इलाज चाहते हो, नजर बद और हसद से बचना चाहते हैं, अगर कोई अर्जेंट बेसिस पे कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए, वो रातों रात रब करीम से जो भी मांगे इसकी हाजत पूरी हो जाए, तो 3 शबान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ के देख लो। एक रात में नसीब ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। मेरे भाइयों, ये वजीफा रब करीम के नामों का वजीफा है, एक कुरानी आयत का वजीफा है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही खास है। ये मौका एक बार मिलता है। आज 3 शबान बुध का दिन हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ सकता है। कोशिश कीजिए, ये वजीफा लाजमी कीजिएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपको रोजाना इस चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अमल की तरफ जाने से पहले याद रखिएगा कि ये वजीफा आप सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, रात पढ़ लें, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। दुकान पे पढ़ लो, दफ्तर कारोबार जहाँ जिसको जब वक्त मिलता है चलते फिरते पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। बावजू मसल्ले में बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। तवज्जो कीजिए, हो सकता है कि मेरे बहुत सी बहनों भाइयों ने अभी तक वीडियो काट कर स्किप करके देखी हो, लेकिन अब अमल का तरीकाकार बता रहा हूँ जिसका एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है, बहुत अहम है। अब वीडियो स्किप करके या काट के देखने से अमल का कोई हिस्सा छूट गया, कोई जरूरी बात आपसे मिस होगी तो वजीफे का फायदा ना होगा। ये मौका एक बार हाथ से निकल गया ना तो मेरे भाइयों, पूरे साल का पछतावा फिर इसी महीने में नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। अगर ये 1 मिनट का वजीफा पढ़ने से आपकी नसीब, आपके तकदीर बंद ताले खुल जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मेरे भाइयों, एक बार दुरूद पाक पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा जो हम नमाज में पढ़ते हैं। सवाब की नीयत से पढ़ लीजिएगा मेरे साथ भी एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है
क्योंकि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और आज नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। कबूलियत की घड़ियां हैं। आप बेघर हैं, घर मांग लें। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी के लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज के लिए पढ़ लें। आपकी कोई हाजत, कोई मकसद है, बेटियां, रिश्तों के लिए पढ़ लें। घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें। कारोबार में तरक्की और दुकान पे ग्राहकों के रश के लिए पढ़ लें। आप आज रब करीम से जो भी मांगेंगे वो आपको फौरन दिया जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ 3 शुबान बुध के दिन ये वजीफा 3 बार पढ़ने से अर्जेंट बेसिस पर आपकी हाजत पूरी होगी। रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आपने जो भी मांगना है मांग लो, क्योंकि आज आप जो भी मांगेंगे आपको मिल के रहेगा। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते साथ ही आपने अब अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अब तवज्जो सिर्फ रब की रहमत की तरफ हो। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आप रब के सामने मंगता भकारी फकीर बन के बैठे हैं और पहले नंबर पर आपने रब करीम के एक नाम को पढ़ना है जो रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोलता है, जो रातों रात गैब से मदद लेके आता है, जो हर मुश्किल परेशानी का वाहिद हल है। अगर आप पर कोई मुश्किल वक्त, परेशानी, मुसीबत, रुकावट आ जाए और आप जल्द जान छुड़ाना चाहते हैं, आप किसी मुकदमे में फंस जाएं, आपकी कोई भी हालत गैर हो, तो आपने या करीमू को पढ़ के देखिएगा 3 शुबान बुध के दिन। या करीमू, या करीमू, या करीमू पढ़ने की देर है। ये रब की सिफ्त है, ये रब का सफाती नाम है, ये इस्म आज़म है। और जब इस्म आज़म किसी के हाथ लग जाता है फिर मांगना नहीं पड़ता मेरे भाइयों, मिल जाता है। फिर मुंह से निकली हर बात भी पूरी होती है। फिर तकदीर के बंद ताले भी खुलते हैं। फिर नस्लें भी आबाद होती हैं। फिर घर का बच्चा बच्चा अरबपति भी बन जाता है। अगर किसी को यकीन नहीं आता, वक्त भी है, मांगने की घड़ियां भी हैं, रब की ज़ात देने को तैयार है। पूरे साल का नसीब और तकदीर का फैसला हो रहा है। आपने या करीमू को 33 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या करीमू 1 बार हो गया, या करीमू 2 बार हो गया, या करीमू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या करीमू, या करीमू, या करीमू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 33 यानी 30 और 3 33 बार पढ़ना है। 33 टाइम्स पढ़ना है। जब आपके मुल्क में 3 शबान का दिन आ जाए तो आपने चलते फिरते जहां जिसको वक्त मिलता है पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है या करीमू का पढ़ना है। और इस दौरान अगर कोई बंदा नया घर, कारोबार, तरक्की, अरूज, कामयाबी जो भी मांगेगा, या करीमू पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब करीम ने आपकी बात सुन ली है, आपकी हाजत कबूल हो गई है। फिर मांगने वाला जिद करके मांगता चला जाता है। फरिश्ते आसमान से रिज्क और दौलत लेके आपके कदमों में आ जाते हैं। अब या करीमू पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम की एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये आयत रब के कलमात हैं, रब के अल्फाज हैं। आपने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर को पढ़ना है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर तर्जुमा बेशक मेरा रब हर चीज पे कादर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की कदरों कीमत कौन नहीं जानता। अगर कोई कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, जो कहता है कि मैं हर कदम पर मायूस हो जाता हूँ, मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हर साल हर मसला हल होते होते रह जाता है, हर चीज हाथों से निकल जाती है, तो आपने मेरे भाइयों इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर को पढ़ के देखिएगा। ये आयत तकदीर के बंद ताले खोल देती है। आज रब करीम से वो मांगना जो आपकी अकल कहती है ये मिल नहीं सकता, ये हाजत पूरी हो नहीं सकती। मेरा रब आपकी इस हाजत को भी गैब से पूरा फरमाएगा। हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। आपने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर को पढ़ना है। सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 1 बार हो गया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 2 बार हो गया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर और 3 बार
पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। आज हर कोई चाहता है कि इसके पास जल्द अज जल्द मालो दौलत आ जाए, इसके पास इतना रुपया पैसा आ जाए कि वो रब से जो भी मांगे इसकी हाजत पूरी हो जाए। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ने से रब की जात 300 रिस्क के दरवाजे खोलेगी, आपकी तमाम मसाइल का खात्मा फरमाएगी, आसमानों और जमीन के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। आज खजाने लूटने का दिन है, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपने ये 3 छोटे छोटे अमाल करने हैं। पहले नंबर पर रब करीम का एक नाम या करीमू पढ़ना है। दूसरे नंबर पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ना है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो तवज्जो से सुनिएगा। आज का आखिरी और तीसरा वजीफा ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफा है जिसे अगर कोई लाचार पढ़ता है, तंगदस्त पढ़ता है, बीमार पढ़ता है तो शफाई कुल्ली नसीब होती है। जो गायबी खजानों का मालिक बनना चाहता है, जो किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, जो किसी बंद गली में आ चुका है कि इससे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर तरफ से दर बंद हो चुके हैं, हर तरफ से आपको मायूसी का सामना है, तो वो आज ये तीसरे नंबर पर जो वजीफा बताने जा रहा हूँ पढ़ लीजिएगा। ये तोहफा है, ये आपको सीने का राज बता रहा हूँ। ये वो मुस्तनद वजीफा है। मेरा मकसद आप तक वो वज़ाइफ लेके आना है मेरे भाइयों जो मुस्तनद हों, जिनका वजूद हो, जिनको पढ़ने से बेहद फायदा होता हो, मुश्किलात आसान होती हो, परेशानियों का खात्मा होता हो। आपने तीसरे नंबर पर या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ना है। या अल्लाह रब करीम का जाती नाम है, या मुहम्मद रब के प्यारे महबूब का नाम है। जब कोई बंदा या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ता है तो रब भी राजी हो जाता है, रब का महबूब भी राजी हो जाता है। मेरे भाइयों, जब जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाए उसे दुनिया की कौन सी ताकत नुकसान पहुंचा सकती है। रब राजी हो जाए तो नस्लें आबाद हो जाती हैं, महबूब भी राजी हो जाए तो घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। आज तो फिर शबान का महीना है, शबान की 3 तारीख आ चुकी है। ये घड़ियां बार बार नहीं आएंगी, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज वक्त है, आज रब की जात बांट रही है, खजानों का मालिक बना रही है, नसीब और तकदीर के फैसले कर रही है। इस महीने में आपका मुकद्दस तारा चमक उठेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इससे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि ये 3 अमाल पढ़ते दौरान आपने इन 3 बातों का बहुत खास ख्याल रखना है। पहली बात, वजीफा पढ़ते दौरान आपने ना तो किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात कर ली तो वजीफा मेरे भाइयों जाया हो जाएगा। तवज्जो, ध्यान, यकीन कमाल से मांगने वाला आज जो भी मांगेगा मेरा रब मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। दूसरी बात, वजीफा पढ़ते दौरान दिल ही दिल में अपने मकसद को रखना, अपनी हाजत को रखना, अपनी ख्वाहिशात को रखना। अगर आप एक लंबी लिस्ट बनाकर भी रब से मांगते चले जाओगे ना मेरे भाइयों ये 3 वज़ाइफ पढ़ते दौरान, तो मेरा रब तो खजानों का मालिक है, वाहदा उला शरीक है, उसके खजाने कुदरत सिर्फ एक कुन के मोहताज हैं। हम सब की हालात बदल जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे। इसलिए मकसद को बार बार वजीफा पढ़ते दौरान दिल में रख के मांगते चले जाएं। मेरे भाइयों, ये 3 वज़ाइफ पढ़ते ही आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है और वज़ाइफ और दुआएं कबूल नहीं होती। इस महीने में नामा अमाल रब के सामने पेश होने हैं। रब के सामने शब बरात की रात नामा अमाल पेश होने से पहले पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें मेरे भाइयों। और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है, जिससे रब राजी हो जाता है, वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 3 बातों पे अमल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद तवज्जो कीजिएगा, आज का आखिरी वजीफा या अल्लाहु या मुहम्मद का है। आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? आपने या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद को 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या अल्लाहु या मुहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार का मतलब है 11 बार ही पढ़ा जाए। मैंने शुरू से आप तक वजीफे की जो तरतीब बताई है, 3 अमाल बताए हैं, कितनी बार पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किस तरतीब से पढ़ने हैं, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। वो सिर्फ इसलिए आपसे छोटी सी भी गलती कुताही ना हो जाए। आप वीडियो स्किप करके देखेंगे, अमल का कोई हिस्सा छूट गया, कोई फजूल बात नहीं की, सिर्फ अमल का हिस्सा बताया है। आज इन बहनों बेटियों माओ बुजुर्गों के लिए मेहनत की है, वजीफे का एक एक हिस्सा बताया है
ताकि वो मेरी बहनें जिनको वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको रब से मांगना नहीं आता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो 3 शबान बुध के दिन का इस खास कबूलियत की घड़ी से महरूम ना रह जाएं। शुरू से अब तक बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ते ही कमी पेशी बिल्कुल मत कीजिएगा। आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल हो चुका, आप दोनों हाथ उठा के रब करीम से मांगिए। कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से जो भी मांगोगे आपकी हर हाजत पूरी होगी। मेरे भाइयों, ये सरकार दो आलम का महीना है, ये मांगने की घड़ियां हैं, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो शुबान के महीने में इन 3 छोटे छोटे अमाल को नहीं पढ़ेगा। मेरे भाइयों, जिद करके मांगे, हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, आप जो भी मांगोगे मिल जाएगा। और शुबान के महीने में रोजाना की बुनियाद में खुसूसी दुआ होती है। मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन बोलना है, सैकड़ों हजारों लोग तक ये वीडियो जाएगी, किसकी आमीन की कबूलियत हो जाए और हम सब की हाजात पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे, बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमा दे, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा दे। मौला करीम जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। तेरे बंदे हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। इस महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है, हम सब पे नजर करम फरमा। मेरे मौला हमें गायब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जिज़ाकल्लाह।